Rape of the Lock. Good morning, students. Today I am going to teach you The Rape of the Lock by Alexander Pope. It is a mock heroic narrative poem written by Alexander Pope, one of the most commonly cited example of high burlesque. It was first published anonymously in Lintott's Miscellaneous Poem and Translation in May 17 in 2 cantos, and it has 334 lines. A revised edition written by Mr. Pope followed in March 1714 as 5 cantos. First it has 2 cantos and later 3 more cantos were added and it became 5 all total. So there must be, it is a question for net also, that how much cantos are there for at first. So there are 2 cantos as first, and after that Pope has added 3 more cantos, and there is all total 5 cantos, and all total it has 794 lines accompanied by 6 engravings. Pope boasted that this sold more than 3000 copies in its first 4 days. So when he added 5 cantos and 3 more for cantos, so he is saying that it Pope Alexander, I'm talking about Pope Alexander Pope, boasted that he says he show off that boasted means he show off that it is more than 3000 copies are sold in 4 days. After that, the final form of the poem appeared in 1717. So when the final poem appeared, when the poem is finally completed or published as with the 3 more cantos or total 5 cantos, 1717, with the addition of Clarissa's speech on good humor. Clarissa is a character who is the mouthpiece of Alexander Pope. Whatever Alexander Pope wants to say, he is saying in the speech of Clarissa. So Clarissa is a character who is friend of a character the hero also, and she is the mouthpiece of Alexander Pope. The poem was much translated and contributed to the growing popularity of mock heroic in Europe. So it is an example, best example of mock heroic. So as you have come to know that this poem is a heroic mock heroic poem. So what is the description of this poem? What is the background of this poem has a background. It is not, it has some source or some real story. It is not just like that it is a normal poem. It has some background also. So the poem satirizes a small incident by comparing it to the epic world of the gods. It was based on an actual event recounted to the poet by Pope's friend John Carroll. Arabella Fermor and her suitor Lord Petre were both from aristocratic, recreant Catholic families. I will explain it. At a time in England when others such laws as Test Act, all denominations except Anglicanism suffers a legal restriction and penalties. So the source of the poem or the background of the poem is that it is based on an original event. There were 2 aristocratic families, Sir Baron Petre and Arabella Fermor. Sir Baron Petre cut the hairlock of Arabella Fermor, for she has rejected his love. It is said that she has rejected his love and proposal. So she is a very beautiful lady and her hairs are her asset of beauty. So what he did, this man Baron, he cut the hairlock, बालों को काट दिया. बालों की जो चोटी बनी थी, जो प्लेट्स बनी थी, जो लॉक बना था, उसको उसने काट दिया क्योंकि उसने उसके लव को रिजेक्ट किया था. तो आउट ऑफ एंगर और वॉट एवर उसने उसके हेयर्स को, बालों के जो लॉक थे, लॉक मीन्स यहाँ पे लॉक ताले की बात नहीं हो रही. लॉक का मतलब जो हेयर्स के कर्ल्स होते हैं और उसमें जो प्लेट्स बनी होती, जो बालों की चोटियाँ होती, उनकी बात हो रही है. सो द ग्रेट स्कैंडल अकर्ड इन बिटवीन द 2 फैमिलीज. उसने काट दिया तो क्या हुआ कि बहुत सारा एक वो स्कैंडल हो गया. फिर पोप का एक फ्रेंड था जिनका नाम था जॉन कैरल. उन्होंने पोप से कहा कि प्लीज़ राइट समथिंग टू काम डाउन द रिजेंटमेंट. सो द रिजल्ट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सटारिकल पोएम इन ऑल ऑफ द लिटरेचर.
यू अंडरस्टैंडिंग। फिर पोप के फ्रेंड ने कहा कि आप कुछ ऐसा लिखिए जिससे इनके बीच में जो डिस्टर्बेंस है वो ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसे ही लिख दिया अपने आप, इन्होंने बाकायदा परमिशन ली। किससे ली? एराबेला से, एराबेला फर्बन। और इनका नाम कैरेक्टर्स चेंज किए हैं, इनके नाम को, रियल नेम को चेंज किया है। एराबेला फर्बन को बेलिंडा बोला है और बैरन को एज लॉर्ड पेट्रे बोला है। ठीक है। So going further, I will tell you that Petre has cut off a lock of Arabella's hair without the permission, and the consequent argument has created a breach between the two families. The poem's title does not refer to the extreme of sexual rape, but to the earlier alternative definition of the word derived from the Latin rapere, supine stem rupture. टू स्नैच, टू ग्रैब, टू ऑफ ऑफ। यहाँ पर एक नॉर्मल जो सेक्सुअल रेप होता है उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक लैटिन रैपर का वर्जन है ये वर्ड यहाँ पे से लिया गया, जिसका मतलब होता है टू स्नैच, टू ग्रैब, टू कैरी ऑफ, मतलब किसी का कुछ छीन लेना, उसके साथ कुछ ग्रैब करना। इन दिस केस द थेफ्ट एंड कैरिंग अवे ऑफ लॉक ऑफ हेयर। और यहाँ पर तो हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉक ऑफ हेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम किसी रेप की बात नहीं कर रहे, हम बालों की हेयर्स के लॉक्स की बात कर रहे हैं। So, in terms of sensibility of the age, however, even since non-consensual personal invasion might be interpreted as bringing dishonor. अगर आप किसी से परमिशन नहीं लेते हैं और उसके साथ आप कुछ भी करें, कोई भी बिहेवियर करें, अगर आप किसी के घर में नहीं जाना, कोई आपको नहीं अलाउ कर रहा अपने घर में और आप फिर भी एंटर करेंगे तो आप उसकी मर्जी के बिना कर रहे हैं, तो ये एक तरह का डिसऑनर है। यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द पर्सन और पर्सनस बाउंड्री। सेम एज यहाँ पर आप इसका कंसेप्ट ले सकते हैं कि सेम एज इट इज़ सच लाइक आप किसी को एक डिसऑनर कर रहे हैं, उसको इसी तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर एक बहुत भारी वर्ड यूज़ किया, रेप ऑफ द लॉक। तो टाइटल भी एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, समझने वाली चीज़ है। Pope, also a Catholic, wrote the poem at the request of friend in an attempt to comically merge the two worlds, the heroic with the social. He utilizes the character Belinda to represent Arabella and introduce an entire system of sylphs or guardian spirit of virgins, a paradise version of gods and goddess of conventional epic. यहाँ देखो बात बहुत छोटी हो रही है, लेकिन एपिक, मॉक एपिक, हम किसी का मजाक उड़ाते हुए ऐसा बढ़ा चढ़ा के बात कहें कि उससे आपका सटायर भी क्रिएट हो और लाफ्टर भी क्रिएट हो और बात भी संभल जाए। तो पोप तो बहुत मशहूर थे इस चीज़ के लिए, अलेक्जेंडर पोप की ये स्पेशलिटी थी। तो उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा इवेंट है, आप बात को देखें कि यहाँ पे बहुत छोटा सा इवेंट है कि उस बालों को काट दिया था बैरन पेट्रे ने, लेकिन उन्होंने इसको एक इस तरह से दिखाया कि ये डिसऑनर हुआ लेडी के लिए और उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया। और इन्होंने इसको लिखने से पहले एराबेला से परमिशन भी ली थी और उससे ये बोला कि एक आप तो इतनी बढ़िया लेडी हो, आप तो इतनी अच्छी लेडी हो, आप इतनी लवली लेडी हो कि आप किसी को रिजेक्ट कर ही नहीं सकती हो, लेकिन आपने रिजेक्ट किया तो क्या करेगा कोई बंदा, उसे तो गुस्सा आ ही जाएगा और जब उसे गुस्सा आ गया तो उससे हो गई गलती। लेकिन आपके बाल का जो लॉक है, जो आपकी चोटी है, वो ऐसी वैसी जगह नहीं गई, वो एक सितारा बन के, एक तारा बन के, कॉन्सलेशन बन करके एक आसमान में चली गई है। तो उनको इतना बढ़ा चढ़ा के कहा कि उनका जो गुस्सा था वो ठंडा हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, हीरोइक मॉक एपिक का जो वो होता है इंग्रेडिएंट्स है वो सारे लिए हैं इन्होंने। सुपरनैचुरल मशीनरी इस्तेमाल किया है, इन्होंने सिल्क्स को लिया है जो कि एयर फ्लाइंग सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते हैं, जो आसमान में उड़ने वाली छोटी छोटी परियां आप समझ लीजिए वैसे होते हैं। फिर इन्होंने यहाँ पर जेनोम का इस्तेमाल किया, जैसे एम्ब्रियल जो है वो जेनोम है, यानी जो अर्थ में रहने वाले होते हैं। तो सुपरनैचुरल एलिमेंट में आप दो चीज़ें और भी होती हैं, निम्स होती हैं, सैलामेंडर्स होते हैं जो कि फायर स्प्लिटर्स होते हैं, और जो निम्स होती हैं वो वाटर लिविंग होती हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का ही इस्तेमाल हुआ है। सो सिल्फ के नाम पे इन्होंने कई सिल्फ का इस्तेमाल किया, जिसमें सबकी जो हेड सिल्फ थी वो थी एरियल। आगे हम पढ़ेंगे
यहाँ पर कि इन्होंने सिल्फ का इस्तेमाल किया और उसको गॉडली इवेंट दिखाते हुए, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हुए इतना बढ़िया लिखा कि एराबेला का गुस्सा शांत हो गया। पोप ड्राइव्ड हिज सिल्फ फ्रॉम 17th सेंचुरी फ्रेंच। पोप ने इसका आइडिया कहाँ से लिया सिल्फ का? 17th सेंचुरी फ्रेंच रोज़िक्रूशियर नॉवेल कॉम दे ग्रेबल्स, वहाँ से लिया। पोप राइटिंग pseudonymously as Adras Barnevelt also published a key to the lock in 1714. So पोप ने वहाँ से आइडिया लिया as a humorous warning against taking the poem too seriously. उन्होंने ऐसा आइडिया लिया और मतलब लोगों को लाफ्टर भी क्रिएट हो गया, पोप क्या कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बात भी कह दी। पोप्स poem uses the traditional harsh structure of classical epics to emphasize the triviality of the incident. The abduction of Helen of Troy became here the theft of lock of hair. The god became minute sylphs. The description of Achilles' shield became an excursus on the one of the Belinda's petticoats. He also uses the epic style of invocation, lamentations, explanations, and similes, and in such cases add parody to imitation by following the framework of actual speeches in Homer's. Here Pope is using all the machineries of mock epic. He is exaggerating the event as the Helen of Troy it is a theft of something like Helen of Troy, and he is taking the description of Achilles, and he is taking the style of invocation of muse and lamentations and exclamation and similes, and in some cases add parody to imitation by following the frame of actual speech. इन्होंने किसको कॉपी किया? यहाँ पर इन्होंने होमर को कॉपी किया है। होमर और इलियाड्स को होमर के इलियाड को कॉपी करते हुए ग्रैंड स्टाइल दिया। Although the poem is humorous at times, Pope keeps a sense that beauty is fragile and emphasizes that loss of a lock of hair touches Belinda's deeply. ब्यूटी जो होती है वो बहुत फ्रेजाइल है। वो लेडीज़ जो होती हैं उनके लिए बाल उनके बहुत बड़ा एसेट होता है, बहुत कीमती होते हैं। आप जानते हैं एज अ वुमेन, अगर आप सुन रहे हैं तो आप जानते हैं कि हेयर्स जो होते हैं वो बाल नहीं होते हैं हमारे, तो हमारे एसेट होता है। तो वो बहुत सीरियसली लेती है उस अपने बाल को, और उसके बाल को डिसऑनर करना उसके लिए बहुत बड़ा इवेंट था। द ह्यूमर ऑफ द पोएम कम्स from the storm in a teacup being couched within the elaborated formal verbal structure of an epic poem. It is a satire on contemporary society which showcases the lifestyle led by some people on that age. Pope arguably satirizes it from within rather than looking down judgmentally on the characters. Belinda's legitimate rage is thus elevated and tempered by her good humor as directed by the character Clarissa. यहाँ पे पोप क्या करते हैं, ये ना पोप जब लिखते हैं तो यूं ही नहीं लिखते हैं, पोप कुछ अलग ही कहना चाहते हैं और कुछ अलग ही कह जाते हैं। इतना बड़ा मास्टरपीस एंड वर्क ऑफ बेस्ट वर्क ऑफ लिटरेचर्स एंड ऑफ ऑल लिटरेचर्स नहीं होता ये वर्क अगर इसे पोप ने नहीं लिखा होता। किसी सिंपल ने लिखा होता तो ये एक समरी बन के रह जाती, और इसे समझाना भी बहुत आसान हो जाता मेरे लिए भी कि मैं आपको सिर्फ एक समरी बताती। इसको आप कई तरीके से देख सकते हैं। पोप ने, अलेक्जेंडर पोप ने इसको लंदन सोसाइटी को भी इसमें रिप्रेजेंट किया है कि लंदन सोसाइटी में क्या होता है। एक जो लवर्स होते हैं उनको भी किया है, फैशन ऑफ लंदन को भी दिखाया है, और कि लंदन में क्या क्या फ़ैशन थे। माउथ पीस क्लारिसा को बनाकर क्लारिसा से कुछ कहलवाया है। तो ये सब कुछ दिखाते हुए पोप ने एक मास्टरपीस लिखा है। ये एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट बेलिंडा को लेते हैं, मिस एराबेला फर्मन को, और उसको सुपरनैचुरल मशीनरी से और एब्सर्ड फाइट से, ऑड वेपन से, क्लारिसा के मुंह से मॉरल कहलाते हुए वो एक ऐसा एक मास्टरपीस क्रिएट करते हैं जो कि मॉक एपिक का पार्ट बनता है, और एक बहुत ही अलग सा, एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही इंजॉयबल चीज़ बनती है। तो अब ये मैंने आपको बार बार बताया कि बिफोर राइटिंग इट ही इज़ राइटिंग अ लेटर, और वो लेटर मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि पोप ने कैसे कन्विंस किया मिस एराबेला को, फर्मर को, कि मैं आपका ये लिख सकूँ। तो उन्होंने लिखा, मैडम
It will be in vain to deny that I have some regards for this piece. ये लेटर एडेड है इसके एडिशन में. पोप एडेड टू द सेकेंड एडिशन द फॉलोइंग डेडिकेटेड लेटर टू मिसेस एराबेला फर्मन. उन्होंने इस लेटर को भी ऐड किया है उसके सेकेंड एडिशन में. It will be in vain, madam, it will be in vain to deny that I have some regard for this piece, since I dedicate it to you. Yet you may bear me witness, it was intended only to divert a few young ladies who have good sense and good humor enough to laugh not only at this sex-style little unguarded follies, but at their own. But as it was communicated with the air of a secret, it soon found it soon found it first. Just a minute. Communication with the air of secret, it soon found its way into the world. An imperfect copy having been offered to bookseller, you had the good nature for my sake to consent to the publication of one more correct. This I was forced to, before I had executed half my design, for the machinery was entirely wanting to complete it. The machinery, madam, is a term invented by the critics to signify that part which the deities, angels and demons are made to act in a poem. For the ancient poets are in the respect like many modern ladies. Let an action be never so trivial it itself, they have make it appear to the utmost important. These machinery are determined to raise on a very new and odd foundation the Rosicrucian doctrine of spirit. I know how disagreeable it is to make use of hard words before a lady, but 'tis so much the concern of a poet to have it words so understood, and particularly by your sex, that you must give me leave to explain 2 or 3 difficult terms. So here he is asking for the permission, and he further says that it is very difficult for you also, but I am writing it to create a humor, to create laughter, and make others understand that why you are so angry, and please allow me to write it. और इन्होंने फिर इसको एराबेला को भेजा, और एराबेला ने खुशी से ही इसको कह दिया ओके ठीक है आप लिख सकते हो. तो अब आपको मैं कैंटो वाइज समरी बता देती हूँ कि क्या होता है. तो यहाँ पर पहले मैं आपको बताऊँ कि फर्स्ट कैंटो में क्या होता है. कैंटो फर्स्ट में क्या होता है, पोप जो होते हैं वो इवोक करते गॉडेस ऑफ पोएट्री को, और ही टेल्स दैट ही इज़ राइटिंग ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड जॉन कैरल. He asked Belinda to inspire her. He asked that Belinda is a gentle lady and how can she reject Baron. So Sunrays enters in Belinda's room, and the name of the dog of Belinda is Shock. Shock came and awakes Belinda. So he is here saying that lovers have deep late sleeps, and they sleep late at 12 o'clock, that at 2 o'clock in the night, and they wake up at 12 o'clock in the noon. So Belinda is also waking up at 12 o'clock in the noon. So famous toilet scene is here where Belinda is getting ready for party. So Belinda is getting ready for the party. There is a party. So in Canto 2, the travel on the Thames River. So Mr. Baron is traveling on the river Thames, and he is thinking of Belinda. The prayer of the young adventurer Baron. Baron is praying that please God forgive me if today I am going to propose Belinda twice, and if she will not accept my love today, so I will cut her lock. So please allow forgive me, please forgive me. He is asking for the forgiveness to God, and he is saying that I am going to do an adventure tonight. The Sylph's mission to tend the fair to protect Belinda. So एरियल आती है और कहती है बेलिंडा से कि वॉर्न करती है कि आज मैंने
बहुत ही बुरा सपना देखा है मैंने, बुरा ही होने वाला है कुछ, आप जो हो बच के रहो। लेकिन बेलिंडा भूल जाती है। फिर सिल्फ जो होती है वो बहुत ही प्रोटेक्टिव हो जाती है, एंड शी टेंस टू द फेयर टू प्रोटेक्ट, एंड शी आस्क हर सिल्फ Brillante to guard the earrings, and Christopher to guard the lock, and Ariel shocked to guard. Ariel is saying that I will guard the dog, and Momentilla को बोला जाता है कि आप वॉच का ख्याल रखिएगा, और 50 सिल्फ्स को लगाती है उसके पेटीकोट को, और उसके पेटीकोट मतलब प्लेट्स को, जो उसने स्कर्ट पहनी होती है अंदर, उसकी प्लेट्स को थामे रखने के लिए 50 परियों को या 50 सिल्फ्स को, सुपर नेचुरल वुमेन को या सुपर नेचुरल डॉल्स को लगाती है ताकि उसको कुछ हो ना पाए। द रेव ऑफ द लॉक हैपन इन थर्ड कैंटो। सो याद रखिएगा कि जो थर्ड कैंटो है उसमें रेव ऑफ द लॉक हुआ, मतलब उसमें उसने काटा है। कैंटो 4 में क्या होता है, बेलिंडा इल नेचर्ड मूड फॉर द लॉस ऑफ लॉक, और वो बाल काट देता है तो बहुत गुस्सा हो जाती है बेलिंडा, और उसके लिए ये जो एम्ब्रियल है ना, ये एक जिरोम है, वो अंडरग्राउंड जाता है, वहाँ से वो टीयर्स लेके आता है इन स्पील, एंड थेलेस्टियल स्पीच होती है वहाँ पर। वो कहता है कि जो रेज है बेलिंडा का बिल्कुल सही है, सर प्लूम बिड्स फॉर द पेमेंट ऑफ द हेयर लॉक। वो कहते हैं कि मैं इसका खामियाजा दिला के रहूँगा। द बैटल ऑफ बैटल्स एंड ब्यूक्स, और उसकी पिंस और पिंस से और तलवारें बनती हैं, क्लिप्स और पिंस जो होती हैं वो लड़ाई करती हैं आपस में। द रेप ऑफ द लॉक जो है एक आप समझ लीजिए मॉक एपिक है, तो इसमें हर छोटी छोटी चीज़ का एग्जैजरेशन होगा। फिर क्या होता है, शी इज़ वॉन, वहाँ पे क्या होता है, फिर ये होता है, फिर क्या होता है, क्लैरिसा जो होती है ना, वो क्लैरिसा एक माउथ पीस है पोप का, वही उसको प्रोवाइड करती है क्या कहते हैं, सीजर काटने के लिए। तो क्लैरिसा जो है वो फ्रेंड ऑफ बैरन भी रहती है, तो वो जो है उसको एक बहुत बड़ा सा स्पीच देती है जिसमें वो मॉरल को जस्टिफाई करती है, और इस पे बेलिंडा का गुस्सा और बढ़ता है। और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे गुस्सा उसका शांत नहीं होता, मगर बैरन जो होता है वो मतलब ये दिखाते हैं कि लड़ाई होती है क्लिप्स से, और वॉर होती क्लिप्स और उसका क्लिप्स एंड ब्यूरक्स का लड़ाई होती है। फिर क्या होता है, लॉक इज़ लॉस्ट इन द बैटल, इसी बीच जो है लॉक जो होता है वो बैटल में खो जाता है, और वो जाकर कॉन्स्टलेशन की तरह इमॉर्टलाइज एज अ कॉन्स्टलेशन एंड और द शाइनिंग स्टार ऐसा बन जाता है, और ये इन्होंने इसमें दिखाया है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा समरी बताती हूँ। तो इसकी समरी ऐसी रहेगी कि पहले तो मैंने आपको कैंटो वाइज बता दी कि क्या हो रहा है एक्चुअली, फिर इसकी समरी होगी थोड़ी सी कि आप ये जाने कि चलो हो गया वो जो भी था, लेकिन अब इसकी थोड़ी सी समरी समझेंगे कि क्या होता है यहाँ पर। आई होप ये बड़ा नहीं हो रहा हो। नहीं, क्या होता है कि इन द बिगनिंग ऑफ दिस मॉक एपिक पोप डिक्लेयर्स दैट अ डायर ऑफेंस, यानी एक कुछ बहुत बुरा स्कैंडल हो गया है। अ लॉर्ड हैज़ असॉल्टेड अ जेंटल बैले, और लाइन 8 में वो कहते हैं कि एक लॉर्ड ने असॉल्ट किया एक जेंटल बैले, कॉजिंग हर टू रिजेक्ट हिम। ही देन प्रोसीड टू टेल द स्टोरी ऑफ दिस ऑफेंस वाइल बेलिंडा इज स्टिल अस्लीप। अब फर्स्ट कैंटो शुरू होता है। हर गार्जियन सिल्फ एरियल forewarns her that some dread event impacts Belinda, then awakes and gets ready for the day with the help of her maid Betty. The sylph, though unseen, also contributes. All the sylph came and they started making Belinda ready for the party. These sets the head and those divided the hair for fold the sleeves, wears other plaits and gowns. Here Pope also described Belinda's 2 locks of hair, which graceful hung behind. The Baron, one of Belinda's suitors, greatly admires these locks and conspires to steal one. So, building an altar, he placed on it and all the trophies of its former loves, sets them on fire and fervently prays, soon to obtain a long possessed line. The lock. Ariel disturbed the impending event, although not knowing that it will be summoned by many sylphs to her and instruct
Here Ariel instruct them to guard Belinda from anything that may befall her. कुछ भी हो सकता है, whether she forgets her prayer और मिस, मतलब उसे लग रहा था कुछ गलत होने वाला है एरियल को, तो वो सबको बोल देती है कि सब लोग उसके आसपास ही रहना, कुछ गलत होने वाला है. हो सकता है वो अपनी प्रेयर भूल जाए, और मिस आ मास्कुरेट और लॉस्ट हर हार्ट और नेकलेस एट द बॉल, कुछ होने वाला है बॉल में. सो बेलिंडा अराइव्स एट हैम्पस्टन कोर्ट एंड इज इन्वाइटेड टू प्ले अ गेम ऑफ ओम्ब्रे. ओम्ब्रे एक गेम होता है ताश जैसा, वहाँ वो खेल रहे होते हैं. कभी आपसे नेट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा गेम खेल रहे थे, तो ओम्ब्रे. और कौन सा हॉल था? हैम्पटन कोर्ट. The conspiring baron acquires a pair of scissors and tries to snip off one of her lock, but it prevented by the watchful sylph. एक watchful sylph ने देख लिया उसको. This happened 3 times. 3 बार उसने कोशिश की, बस in the end the baron succeeded. उसने काट ही लिया उसके बालों को. Pope researchers parroting a passage in Paradise Lost that airy substance soon unites again. When Belinda discovers her lock is gone, she falls into a tantrum while the Baron celebrates his victory. अब वो गुस्सा हो जाती है बहुत, और फिर वो बैरन तो अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा होता है. A Jerome named Ambriel now journeys to the cave of spleen and from the queen receives a bag of sigh, sob, passion and war. ये सारे एलिमेंट्स हैं मॉक एपिक के, कि वो एक एम्ब्रियल जो है वो जाता है और वो वहाँ से बैग लेके आता है आँखों आंसू का और पैशन का, और वॉर ऑफ टंग, मतलब एक टंग भी लाई जा रही है लड़ने के लिए. एंड अ वेल फिल्ड विथ फेटिंग फियर सॉफ्ट सॉरो मेल्टिंग. अजिनो, और वो सब बताते हैं कि क्या क्या लेके आते हैं, मतलब लड़ने के सारे औजार लेके आए जाते हैं. विथ फेंटिंग फियर एंड सॉफ्ट सॉरो मेल्टिंग ग्रीव्स एंड फॉरोइंग टीयर्स एंड ब्रिंग्स देम टू बेलिंडा. फाइंडिंग हर डिजेक्टेड इन द आर्म्स ऑफ द वुमन थिसलिस, अम्ब्रियल पोर द कंटेंट ओवर देम बोथ. और वो रो रही होती किसी से लिपट के, तो वो उसी के ऊपर, दोनों के ऊपर डाल देते हैं. मैनी पीपल मूव बाय बेलिंडा's grief डिमांड द लॉक बैक, बट द बैरन इज unpretendent and refuses. Clarissa admonishes them to keep their good humor, but they will not listen and instead a battle ensues with glare, song and wits and vapor. और फिर वहाँ वेपन से वहाँ लड़ाई होने लगती है. अब ये एग्जैजरेशन है, ये एक ह्यूमर क्रिएट करना है, एक मॉकिंग क्रिएट करना है. बेलिंडा फाइट्स विद बैरन एंड थ्रोस स्नफ अप हिज नोज टू सबड्यू हिम. When she demands that she restore the lock, he restored the lock, however it is nowhere to be found. वो कहती है मेरे लॉक को वापस करो, और बैरन कहता है मैं इसको ले जाऊंगा और एक प्राइस की तरह रखूंगा याद में. 2 लॉक रहते हैं, 2 बाल की छोटी होती है, एक काट लेता है. It is nowhere to be found. It has been made a constellation and is destined to outlast the Constantine. तो वो ये कहता है टेस्टेंट्स, तो वो ये कहता है कि वो मांगती है कि मेरा लॉक वापस करो, तो पोप कहता है कि वहाँ मांगती है, तो वो कहता है कि ये मेरे पास तो है नहीं, और वो बाल जो है किसी तरह से, चोटी जो है किसी तरह से जाती है और आसमान में एक तारा बन जाती है, और वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है इमॉर्टल, कि वो कभी ना ख़त्म होने वाला. तो यहाँ पर अब आप समझेंगे कि ये मॉक एपिक का एलिमेंट है, और इसमें पोप ने बहुत ब्यूटीफुली छोटे छोटे इवेंट्स को बड़े बड़ी से एग्जैजरेशंस के साथ इतना ब्यूटीफुली पुट अप किया है कि इसको पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा. वो डॉग का आना, और सिल्क का पेटीकोट्स को गार्ड करना, और कोई बालों को छोटी छोटी नेम्स. तो इफ़ यू विल इमेजिन, आपको इमेजिन करके भी अच्छा लगेगा. ये आपका एमए का कोर्स होता है 2nd सेमेस्टर में भी, इंडिया में भी, एंड और भी यूनिवर्सिटीज़ में, बांग्लादेश, पाकिस्तान. सो आई होप यू विल लाइक इट एंड इट विल बी अ गुड हेल्प.